So welcome back to another new episode of Aman Sharma, and in today's episode we'll be discussing about the top recommended resources for first year medical students. Now this video is basically because of the fact that you must be knowing what all other options are available for you to choose upon, and after that you would only know that which resources I can choose and which resources is best for me according to my studying methods, according to my studying ways. So basically I won't be recommending you any kind of resources. I would be just be telling you what all resources are available, because of the fact that what resource work for me might not work for you. That's the completely, I should say, basic fact you must be knowing. क्योंकि यार कोई चीज़ें मेरे लिए काम करती है क्योंकि मेरी स्टडिंग मेथड्स अलग हैं, क्योंकि मुझे लेट्स जस्ट सपोज कि मुझे वीडियो रिसोर्सेज से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. सो मोस्टली मैंने जो रिसोर्सेज पढ़े हैं, जो रिसोर्सेज से मैंने सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, वो सारे वीडियो रिसोर्सेज हैं. सो इट माइट नॉट वर्क फॉर यू. That's why. Basically, this whole video is divided into three basic parts. In the first part of the video, I will be telling you about the various books available in the three subjects, I should say, anatomy, physio and biochem. In the second part of the video, I will be telling you about the video resources available for this whole three subjects. And apart from that, in the third part of the video, we will be discussing about why it is important to choose the best resources for you, and also we'll be trying to understand the resource pyramid. So this is the whole video, and you are free to move on to any part of the video, but I would recommend you to go on with the flow of this video. So yeah, without wasting any time, let's just get started with it. So firstly, let's just talk about the books available right now for the first year subjects, which is anatomy, biochemistry and physiology. तो सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे. एनाटॉमी में आप लोग को सबसे पहले सबको पता है कि इंडियन ऑथर्स की बुक अगर आप लोग चूज करना चाहो तो BD इज द बेस्ट बुक. आई वुड रिकमेंड यू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ग्रेज एनाटॉमी, which is kind of a very much big thing, which is kind of a very much big book to complete, but I haven't read from that. Clinicals you can use, either you could use the Snell's anatomy, and also for clinical anatomy you could use Kaplan's step 1 lecture notes. So ये सारी बुक्स जनरली कहीं ना कहीं तुम्हें PDFs में मिल जाएंगी या फिर कहीं लाइब्रेरीज में मिल जाएंगी. तो दैट इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी. नाउ मूविंग ऑन टू द बायोकेमिस्ट्री पार्ट. तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली there are four books. Basically I should say the first book is about the Indian authors Satyanarayan and Vasudevan. Now both are kind of equal books only. They are lengthy and there are many chapters to complete, but I have read from Vasudevan. Kind of I have completed some chapters from Vasudevan also, but apart from that mostly I have done it from the video resources of biochemistry. And talking about the third book, which is in the biochemistry, which I followed for a long amount of time, was Lippincott. So Lippincott biochemistry is an amazing book because of the flowcharts which is given in that book is kind of very much interesting to see and also very much easy to learn from. So the third book and the fourth book, as you all know, the Harper is like the Grey's Anatomy, similar to Grey's Anatomy in anatomy. So basically there are two basic books which most of the students follow in physiology, A.K. Jain and Simulingam, and mostly I have seen many students following Simulingam. Now there is another book in physiology you could follow, Guyton. I haven't followed that. I have read around 2 or 3 chapters from them, but I haven't read that book full. Okay. So that was all about the books available in this whole 3 subjects. And now moving on to the video resources part, what all video resources are available for these 3 subjects. Now starting with the anatomy. So basically in anatomy, I usually I would recommend you go on with the basic basic videos in according to the topic. Search for videos in YouTube. YouTube is the best resource for, I should say, anatomy, because like channels बताऊँ मैं तुम लोग को. तो जो बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि तुम लोग निंजा नर्ड मेडिसिन, बेस्ट टू बेस्ट चैनल, ठीक है. उसके अलावा एनाटॉमी में अगर आप लोग देखोगे तो एनाटॉमी में यार बहुत सारे रैंडम यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत अच्छे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड बी रिकमेंडिंग यू डॉक्टर नाजिब इज द बेस्ट रिसोर्सेज विच आई कुड रिकमेंड. ठीक है. मूविंग ऑन टू द फिजियोलॉजी में वीडियो रिसोर्सेज की बात की जाए तो फिजियोलॉजी में मेन जो मैंने रिसोर्स फॉलो किया था, जो चीज़ मैं अभी तक फॉलो करता आ रहा हूँ फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी में भी, वो चीज़ है डॉक्टर नाजिब वीडियोस आर काइंड ऑफ अ वेरी मच बोरिंग एंड ऑल्सो लेंदी. बट जिस दिन तुमने वो सारी चीज़ें संभालनी सीख रही ना, जिस दिन तुमने वो लेंदी वीडियोस अगर देख ली, तो जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा होगा ना, तो उसके बाद तुम्हें पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि द कॉन्सेप्ट्स आर सेम फ्रॉम द फिजियोलॉजी ओनली. So that's why I would be recommending you to focus on concepts. So that's why I would be telling you कि ये वाली अगर तुम रिसोर्स फॉलो कर सकते हो डॉक्टर नाजिब के वीडियोस, तो वो तुम फॉलो कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रैंडम यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल है
physiology can, you can go for Kaplan videos also, they are available in the internet also, lecturio, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होगी. And moving on to the third now बायोकेमिस्ट्री के वीडियो रिसोर्सेज बेसिकली बहुत ही कम रिसोर्सेज अवेलेबल थे. सो बेसिकली मैंने इसमें 2 वीडियो रिसोर्सेज हैं जो मुझे अच्छे लगे. द फर्स्ट रिसोर्स इज डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर बायोकेमिस्ट्री वीडियो. सो उनकी सारे वीडियोस उनके यूट्यूब पे अपलोडेड हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन गो एंड वॉच, एंड इससे हम तुम्हारा जो है ना बेसिक बायोकेमिस्ट्री सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. एंड ही इज़ लाइक, उन्होंने बायोकेमिस्ट्री इतने अच्छे से समझाया ना कि सारे उसमें फ्लो चार्ट्स हो गए, सारे साइकिल्स हो गए, इतने सारी चीज़ें मुझे सारी चीज़ें समझ में आई और सारी चीज़ें याद भी हुई है. तो उनके वीडियोस देखो, और उससे ज़्यादा और कुछ अच्छा नहीं है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हें कोई और रिसोर्स फॉलो करना है फॉर बायोकेमिस्ट्री, आई वुड बी रिकमेंडिंग यू गो ऑन विद कैप्लन्स के बायोकेमिस्ट्री वीडियोस भी अच्छे हैं. और भाई बाकी बहुत सारे रैंडम यूट्यूब वीडियोस बहुत अच्छे अवेलेबल हैं. जस्ट तुम टॉपिक टाइप करो यूट्यूब में, गो ऑन इन द यूट्यूब, सर्च द टॉपिक विच यू वांट टू स्टडी, एंड यू वुड गेट एम्पल अमाउंट ऑफ वीडियोस अवेलेबल फॉर दैट टॉपिक इन दैट. सो आओ पहले समझते हैं हम लोग रिसोर्स पिरामिड क्या है. सो बेसिकली रिसोर्स पिरामिड ज़्यादा कोई एकदम कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है. जैसे तुम पिरामिड, ये सारी जो तुम्हारे सामने स्क्रीन में पिरामिड आ रही होगी, जैसे जैसे पिरामिड में तुम ऊपर जाते जाओगे, द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन दैट रिसोर्स वुड इंक्रीज. ठीक है. एंड जैसे जैसे तुम पिरामिड में नीचे आते जाओगे, द बेसिस लेवल जो कंटेन करता है सारी बुक्स, ठीक है, उसमें कंटेक्चुअल कंटेंट भी अवेलेबल है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, I should say it contains all the important information also, but kind of in a disarranged manner. So basically क्या है, the base of the pyramid includes all the books, क्योंकि उसमें सारी सबसे ज़्यादा information होती है. ठीक है. जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, now the second level in this pyramid comes the video resources. अब video resources में क्या होता है कि contextual content कम होता है. मतलब कि एक लेट्स जस्ट सपोज हम लोग डॉक्टर नाजिब की वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें समझाने वाला पार्ट जो है वो सारे डॉक्टर नाजिब समझा देंगे हमें. एंड हमें क्या लिखना है कि सिर्फ उसके क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें रिटेन करनी, क्या इन्फॉर्मेशन हमें याद करनी, वो सारी चीज़ें हमने लिखनी है. और उससे अगर तुम नोट्स बनाओगे तो एक काइंड ऑफ स्मॉलर सिंपल नोट्स बनेगा. नाउ द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ दिस होल पिरामिड, रिसोर्स पिरामिड, कंटेन्स द रिसोर्सेज विच आर रिव्यू बुक्स. Now what are these review books? Now review books are a kind of कि let's just suppose कि तुम्हारी anatomy इतनी बड़ी थी and एग्जाम के समय में तुम्हें इतनी बड़ी बुक तो नहीं पढ़ पाओगे. ठीक है. तुमने नोट्स बनाए, वो भी बहुत बड़े थे. सो रिव्यू बुक्स काइंड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं. वो सारे एनाटॉमी के सारे टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीज़ें होती है. सो दैट इज द रिसोर्स पिरामिड विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज the fact that you have to go on trying and each and every resources that is available in the market, and you have to be self-aware about that fact कि कौन सा रिसोर्स मेरे लिए अच्छा है. देखो ये सारी जो मैंने आज तुम्हें रिसोर्सेज बताई, वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं. एंड जो खुद मैंने फील करा है उसके हिसाब से मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि नहीं यार ये बुक अच्छी नहीं. लेट्स जस्ट सपोज कि मैंने एक चैप्टर ग्रेज एनाटॉमी पे भी पढ़ा. ठीक है. वो बुक मुझे नहीं अच्छी लगी, वो बुक का लैंग्वेज मुझे अच्छा नहीं लगा, वो काइंड ऑफ बोरिंग लगी मुझे. तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि यार ये बुक नहीं है मेरे लिए, बाकी मैं और कोई और रिसोर्स देखता हूँ. सो वैसे तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा तुम्हारे लिए कौन सा वर्क कर रहा है. और जब तक तुम हर एक चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें खुद के लिए एक अच्छी रिसोर्स क्या है वो पता नहीं चलेगा. और ये सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल हैं, ये सारे रिसोर्सेज नेट पे अवेलेबल हैं, सारी के PDFs अवेलेबल है. तो वो सारी चीज़ें तुम खुद ट्राई कर सकते हो. ठीक है. सो या दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो. एंड अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो जाओ एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. ठीक है. ऐसी और वीडियोस हर हफ्ते आती है, हर हफ्ते में 2 वीडियोस रिलीज कर रहा हूँ. सो ठीक है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और उसके साथ साथ या दिस इज अमन शर्मा साइनिंग ऑफ. वी विल बी बैक विद अनदर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो. टिल देन, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.